Good morning, students. How are you? Fine? Okay. This is the session beginning of 12th class studies. Okay. So, in 12th class, nowadays, we are suffering from corona infection. So, take care about this and start organic chemistry. Though we have already started physical chemistry, but we stop that and start organic chemistry. Okay. So, first, organic chemistry. In organic chemistry, it is necessary to cover their previous concepts, that is basic concepts of. Okay, this is necessary to revise your first important concepts of organic chemistry. Okay, in this we have to learn hybridization of carbon compounds, and second, reaction intermediates. Okay, and third one is types of reaction. Okay, so we will start from hybridization of carbon compounds. Though carbon having only S and P orbitals in its outermost shell. Okay, so during hybridization, it will mix their S and P required orbitals and form new hybrid orbitals. Okay, so in carbon, only three types of hybridization found, that is sp, sp2 and sp3. Okay, sp, sp2 and sp3. इनके शेप भी तो पता होना चाहिए. ओके, सो sp having linear shape, sp2 trigonal planar shape and sp3 having tetrahedral shape. Okay, now next we will compare their electronegativity. Okay, so electronegativity मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी. E oblique N means electronegativity. Okay, electronegativity order of hybrid orbitals is sp is highly electronegative, then sp2, then sp3. Okay, sp is highly electronegative. Remember this. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी मैकेनिज्म में जब आप क्लीवेज ऑफ बॉन्ड करोगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ ऑल द थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. In 12th class, in 11th class, you studied all the things. Next, second point is reaction intermediates. Okay, so first ये क्या होते हैं, सेकंड कैसे बनते हैं, थर्ड ये क्यों अनस्टेबल है, एंड फोर्थ इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करना. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू रिपीट some small thing, that is we revise that which one is primary carbon, which is secondary carbon, which is tertiary carbon and which is quaternary carbon. Okay, ये बात भी आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में यूज करना है. Okay, so which carbon atom bonded with single carbon atom, it is called primary carbon atom. By this way, this is primary carbon atom, this is also primary carbon atom, this is also. Okay, these
These are primary carbon atoms. The carbon atom which connected with only 2 carbon atoms. Rest of the valencies it is understood. जितनी भी बाकी valencies नहीं शो हो रही है क्योंकि हम skeleton लिखते हैं वो सारी हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करना है. ओके, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एटम बिकॉज इट कनेक्टेड विथ ओनली अदर 2 कार्बन एटम्स. दिस इज ऑल्सो प्राइमरी. दिस वन इज tertiary carbon atom. Okay, and this is quaternary carbon atom. 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ठीक है, ये आपने समझ लिया. तो ये उनकी डिग्री है. ओके, कम टू द पॉइंट. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं. ओके, वी विल टेक वन एग्जांपल ऑफ इथेन. Ethane. Okay, during the reaction ethane undergoing dissociation upon certain condition or specific condition ethane will dissociate or cleave in hydrolytic manner and maybe it will dissociate it homolytically. Okay, homolytically. What is the difference between hydrolytic and homolytic cleavage? Okay, in 11th we already studied, but once again I repeat it. If this bond is formed by mutual sharing of electrons, if hydrolytic cleavage happens, then both the shared pair of electron transfer to any one carbon atom. Okay, upon giving condition this will happen. Specific condition में ये होता है. जो भी कंडीशन दी हुई है रिएक्शन के लिए उसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होना मीन्स ये शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन के थ्रू ले लिए जाते हैं. तो ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और चूंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन वहां जा चुका है इसीलिए ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी. ओके, सो वी विल ड्रॉ. इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इट मींस इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज प्लस एंड सेकंड स्पीशीज हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी स्पीशीज में बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद यदि लास्ट शेल में अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ओके, एंड फाइनली इट हैज वन नेगेटिव चार्ज बिकॉज इस कार्बन का भी तो इसने लिया इसलिए इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक, इफ homolytic cleavage occurs then each carbon having their own electron, उसने जो कंट्रीब्यूशन के लिए यूज किया था शेयरिंग के लिए वो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया. बाय दिस वे जनरेट फ्री रेडिकल्स. ओके, ये फ्री रेडिकल्स है. इन्हें क्या कहते हैं बताते हैं. ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है इट मींस it has philicity towards electron, affection towards electron, lovingness towards electron. That's why it is called electrophile. Okay, this is electrophile. 1 2 3 4 5 6, this is 6 electron species. That's why we call it electrophile. Come this side. 1 2 3 4 5 6 7 8, it has 8 electrons. ये 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियस लविंग है. सो इट इज कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियोफाइल. दिस इज कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन. इट मींस ये किस कैटेगरी में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. इट हैज 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज आल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. बट हम इसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा लोन पेयर लिए जाते हैं. तो लोन पेयर लेके ये बंदा 9 इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं, इसीलिए
क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इसीलिए भी कहलाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, सो दो न्यूक्लियोफाइल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, फिर भी हम उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कह रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब अनस्टेबल स्पीशीज, अनस्टेबल स्पीशीज मतलब हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ओके, सो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज क्यों कह रहे हैं? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एक चार्ज होने में, दुनिया में चार्ज स्पीशीज हमेशा रिएक्टिव होती है या अनस्टेबल है, ये कह सकते हैं। तो इस कारण से ये अनस्टेबल है। ओके, क्लियर है? If you have any doubt, so between 8 to 9 p.m. you can call me. Okay? So next step is इलेक्ट्रोफाइल। क्या हमेशा पॉजिटिव स्पीशीज ही इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी या नेगेटिव स्पीशीज ही न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो है ही। इसके साथ में हम एक बात ध्यान रखेंगे, we will take more example of neutral electrophile. Okay, neutral electrophile. BF3. Boron is from 13 group. Okay, 13 group elements having 3 electrons in their outermost shell. Okay, so they only can contribute their 3 electrons to other atoms. So by this way they have only 6 electrons in their outermost shell. तो इस तरह से वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट वो न्यूट्रल हैं। सो ऑल द ल्यूइस एसिड्स कंसिडर एज न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड में दिखते हैं। ओके, सेम फॉर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन से? न्यूट्रल। ओके, दोज स्पीशीज आफ्टर बॉन्डिंग having lone pair of electrons, so it will share their own lone pair towards other reacting other electron deficient species like NH3 having one lone pair। तो ये अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ल्यूइस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर कर सकता है। ओके, H2O is also having carbon monoxide is also having lone pair। तो ये अपने लोन पेयर शेयर करा सकते हैं। डोनेट करने की बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ शेयर कराएंगे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद अनस्टेबल थोड़ी होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कराते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स बी स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स। ओके, सो this is electrophile. In case of carbon, it known also as carbocation. This is carbocation. Okay. This is carboanion. Carboanion. Okay. So first we take carbocation stability. We have methyl carbocation because it is generated by the methane or it has only one carbon atom. So as per IUPAC naming, one carbon always denoted as meth. So this is methyl carbocation. Second, ये
प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो इसके हिसाब से ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हुआ। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। ओके, दिस इज मिथाइल, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। ठीक, अब आपने 11th में एक बात पढ़ी हुई है, वो ये कि कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, एक्चुअल में ये जो हम लिख रहे हैं कार्बन, ये कार्बन सिंगल भी हो सकता है, कार्बन की चेन भी हो सकती है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप से। ओके, तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ R। हर एक कनेक्टेड कार्बन को मैं R से रिप्लेस कर रही हूँ, तो R इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ओके, इट हैज CnH2n+1 फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। सो आई विल रिप्लेस ऑल द C विथ R। नाउ कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? फिर से हर एक कार्बन को R से रिप्लेस कर रही हूं मैं, और R एक अल्काइल ग्रुप है। अब 11th में आपने पढ़ा हुआ है R अल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस I इफेक्ट रखता है। प्लस I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट क्या होता है? कोई भी एक स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पुश करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करती है, वो प्लस I इफेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इतना आप मान लीजिए कि हर एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होता है। ठीक, हाँ, जिससे ये जुड़ा हुआ है वो डिमांड है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस स्पीशीज को यदि ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रही है तो इसका चार्ज कहीं ना कहीं यहाँ से कंपनसेट हो रहा है। इस तरह से हम ये देखें कि यदि प्लस चार्ज है तो स्पीशीज ज्यादा अनस्टेबल है, प्लस चार्ज को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया जा रहा है, इसीलिए ये स्पीशीज थोड़ी तो सुकून में आई। इस केस में यदि दो पुशिंग ग्रुप हैं, इसका मतलब है कि ये और ज्यादा सेटिस्फाइड है इससे, और इसकी तो बात ही क्या कहना। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर यदि आपको आपके फादर पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो यहाँ आप मम्मी से भी ले रहे हो, यहाँ आपकी बड़ी दीदी ने भी तो आपको पैसा दिया, इसका मतलब है आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो, आपके पास ज्यादा अमाउंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जो कमी थी वो ज्यादा पूरी हो रही है, तो इसके हिसाब से ये स्टेबल हुआ। तो अब हम इसको इस तरह से साइन से कंपेयर स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड सबसे कम स्टेबल या सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन, ठीक, दिस इज मिथाइल कार्बोएनाइन, दिस इज अगेन I will assign R in place of carbon. To increase degree I will assign R. This is primary कार्बोएनाइन, this one is secondary कार्बोएनाइन, and this is tertiary कार्बोएनाइन। ओके, क्यों कार्बोएनाइन अनस्टेबल थे? उनके पास ऑक्टेट था
बट चार्ज की वजह से अनस्टेबल थे। और जस्ट अभी आपने सीखा कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस तरह से यदि हम माने कि इस बंदे को, चूंकि ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है चार्ज की वजह से, इसे और चार्ज दिया जा रहा है एक तरफ से, इसके पास 2 सोर्सेज हैं, इसके पास 3 सोर्सेज हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज ये कड़वा है, ये कड़वा है, इसको हमने नीम भी मिला दिया, इसमें हमने मेथी भी मिला दिया और इसमें हमने मेथी नीम करेगा तीनों। तो उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हुआ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज तो माइनस है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। स्टेबिलिटी, ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल। हाँ सर। Okay, next, comparison of stability of free radical. This is free radical, 7 electron species, okay, and electron loving species. Methyl free radical, primary free radical, secondary free radical, and tertiary free radical. Same as we studied in कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकी भी डिमांड है इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए कहीं से। तो भाई पापा जी हैं, पापा जी मम्मी जी हैं, पापा जी मम्मी जी दीदी जी हैं, सब कोई इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। इट हैज 3 सोर्सेज फॉर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो टर्शियरी free radical is highly stable, then ये नहीं। This is stability order. Okay, this is stability order. Okay, so next is again I am telling you, if you have any problem to generate electrophile, nucleophile free radical and their stability, you can ask any question at 8 to 9 PM.